Everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the lecture number 4 for JNU Environmental Science MSc level exam from the previous year 2018 section. I request you to subscribe our channel and contact us for the latest study material in this number. So in this question we are discussing sea urchins belongs to which of the following classes? The first option is Astrodia, Ophirodia, Echinodia and Crinodia. These are the options given. They ask sea urchins. Okay, so let us discuss about the sea urchins. Sea urchins are the members of the phylum Echinodermata, which also includes the sea stars, sea cucumbers, brittle stars and cricnoids. Like other echinoderms, they are having five-fold symmetry called as pentamerism and moves means of hundreds of tiny and transparent adhesive tube fits. Okay, so आपको तीन चीजें जानना है यहाँ पे सी अर्चिन्स होते क्या हैं। तो आपने अगर सी अर्चिन्स देखा होगा, ठीक है, तो सी अर्चिन्स का आपको थोड़ा फाइलम के बारे में आइडिया होना चाहिए, जिसमें आप एकिनोडर्माटा इसका फाइलम की बात करते हैं। ठीक है, तीसरा चीज क्या है कि सी अर्चिन्स जो होते हैं वो फाइव फोल्ड सिमेट्री दिखाते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और ये पेंटामेरिज्म इसलिए होते हैं, ठीक है, और हंड्रेड्स ऑफ टाइनी और ट्रांसपेरेंट एडेसिव ट्यूब फिट्स आप देख सकते हैं। ये निकले हुए हैं, ये बहुत सारे इनके ट्यूब फिट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, सो योर आंसर विल बी इक्नोडिया, क्योंकि सी अर्चिन्स जो है वो मेंबर ऑफ फाइलम ऑफ इकिनोडर्माटा के हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क blood passes from right arterium into the right ventricle through one-way valve called as. This is the question. So in this question, if you discuss, it is given bicuspid valve, pulmonary valve, aortic valve and tricuspid valve. So the answer will be tricuspid valve because the blood passes from the right articulum through tricuspid valve only. Okay, and into the right ventricle. From right atrium it transfers to right ventricle through tricuspid valve. Okay, when the right ventricle contracts, the muscular force pushes the blood through pulmonary semilunar valve into pulmonary artery. Okay, the blood then travels to the lungs where it receives oxygen. So ये आपका पूरा प्रोसेस है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको याद रखना है, लेकिन आपका आंसर क्या हुआ? ट्रिकप्सिड वाल्व। ओके, थोड़ा देखते हैं फिगर। सपोज करें ये आपका आर्टियो वेंट्रिकुलर एवी वाल्व्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिकप्सिड वाल्व यहाँ है आपका, दिस इज ट्रिकप्सिड वाल्व। ओके, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का। ठीक है, तो ट्रिकप्सिड वाल्व अलाउ ब्लड टू गो फ्रॉम राइट आर्ट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, याद रखना है, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, फिर आपका आता है मित्रल वाल्व। मित्रल वाल्व जो होता है बाइकप्सिड वाल्व है। ठीक है, तो बाइकप्सिड वाल्व क्या होता है आपका? अलाउ ब्लड्स टू गो फ्रॉम लेफ्ट आर्टेरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्राइकप्सिड वाल्व and bicapsid valve, we have covered this. This is also called as mitral valve. The next question they are asking, which following connects the cerebral hemisphere? Okay, so the cerebral hemisphere is connected by corpus callosum. Corpus callosum. Corpus callosum. Okay, this is very important term, you should remember this. Okay,
The cerebrum is divided into two major parts. Okay, the right and left cerebral hemisphere or half at a fissure. The deep groove down the middle. The hemisphere communicate with each other through corpus callosum, which is a bundle of fibers between the hemisphere. ओके, तो यहाँ पे ये बोला क्या कि जो सेरेब्रम पार्ट है, ठीक है, उसको दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है राइट, एक है लेफ्ट। लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है। डीप ग्रूव डाउन द मिडिल, ठीक है। इन हेमिस्फीयर्स को जो कम्युनिकेट करते हैं वो किसके थ्रू से करते हैं, वो हमारा कॉर्पस कैल्शियम के थ्रू से होता है, ठीक है। तो वही वो बोल रहा है कि दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कौन कनेक्ट करता है, ठीक है। तो कॉर्पस कैल्शियम ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, दिस पोर्शन, दिस इज कॉर्पस कैल्शियम, दिस वन, ये पूरा का पूरा रीजन जो है आपका कॉर्पस कैल्शियम है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दिस वन, ये आपका जो यहाँ पे बना हुआ है रेड कलर से, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला शेडेड रीजन जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज कॉर्पस कैल्शियम, ठीक है। Next question asking the root which develop from any portion of a plant except the radicle are known as, okay, so रेडिकल्स देख लेते हैं कि पहले प्लांट्स के पार्ट्स कौन से हैं। इसको बोलते हैं अगर हम सेमिनल रूट्स, इसको बोलते हैं रेडिकल। ये मेसोकोटाइल है, ये कोलिप्टाइल है, ठीक है। ये प्लांट के कुछ पार्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये पार्ट्स अगर आप याद रखोगे तो आंसर थोड़ा सिंपल बनेगा, ठीक है। तो ये रेडिकल है, ये सेमिनल रूट्स है, ये आपका मेसोकोटाइल है, ये कोलिप्टाइल है, थोड़ा ऊपर निकलते ही, ठीक है। फिर बात करते हैं, अगर रूट्स क्यों बोल रहा है, द रूट्स दैट डेवलप्स फ्रॉम एनी पार्ट अदर देन रेडिकल इन ए प्लांट इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट्स। तो इसका आंसर एडवेंटिशियस रूट्स होगा, ठीक है। तो एडवेंटिशियस रूट्स होते क्या है, आर कॉमनली फाउंड इन दी मोनोकॉट्स एंड टेरिडोफाइट्स एंड आल्सो अमंग सम डाइकॉट्स। ये आपको डाइकॉट्स में मिलता है, मोनोकॉट्स में भी मिलता है और टेरिडोफाइट्स में भी मिलता है। थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें, हमारे पास टाइप ऑफ रूट्स में तीन मेन होते हैं, ठीक है। पहला आता है टैप रूट्स। टैप रूट्स जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है आपका डाइकॉट में। फिर आपका आता है प्राइमरी, जो टैप रूट है वो एक प्राइमरी रूट्स होता है जो कि ग्रो करता है एंड बिकम स्टाउट होता है, ठीक है, स्टाउट बन जाता है। इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी ग्रोथ भी होता है फ्रॉम प्राइमरी रूट से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो इलाका है, ठीक है, टैप रूट का, ठीक है, डोंडेलियन का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का चीज आप कहाँ पे देख सकते हैं, कैरोट, ठीक है, मूली बोला जाए तो, ठीक है, मूली है, गाजर है, तो उन तरीके की चीजों में ये आराम से दिखता है, आप देख चुके होंगे, ठीक है। तो इसको टैप रूट बोलते हैं, ठीक है, दिस इज टैप रूट। अगर फाइब्रस रूट की बात करें तो वे प्रोमिनेंट होते हैं मोनोकॉट्स में, ठीक है। रूट डेवलप फ्रॉम लोअर नोड्स, ठीक है, लोअर नोड से डेवलप होता है, सेम लेंथ होता है, डायमीटर होता है, आप देख सकते हैं लगभग इसका सेम लेंथ भी है, थोड़ा बहुत डायमीटर भी इसका सेम ही है, ठीक है, यहाँ पे सेम है। लेकिन अब अगर एडवेंटिशियस रूट्स की बात करें, दे डेवलप फ्रॉम ऑर्गन्स ऑफ सूट सिस्टम। सूट सिस्टम, तो ये आपका सूट है, यहाँ पे सूट है, सूट सिस्टम से बन रहा है, सूट कहीं यहाँ पे है, तो रेडिकल्स की तो बात ही नहीं उठती है। तो आपका आंसर ऑब्वियसली एडवेंटिशियस रूट्स होगा क्योंकि वो सूट सिस्टम से बन रहा है, ठीक है, सूट सिस्टम के ऑर्गन से बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग in human body which of following muscle types are striated containing the sarcomeres that are packed into a regular bundles. This is the question, okay. So you can see this is a typical structure of what, our cardiac muscles, ओके। तो कार्डियक मसल्स पे आप सार्कोमीर देख सकते हैं,
ये सार्कोमियर आप देख सकते हैं, ये स्ट्रेटेन है, ठीक है, स्ट्रेटेन लाइंस जो हैं वो आपके सार्कोमियर हैं। तो सार्कोमियर स्ट्रेटेन लाइंस जो होते हैं आपके वो कार्डियक में दिखते हैं। तो कार्डियक तो डेफिनेटली योर आंसर, ठीक है। कार्डियक के साथ वो कहां और दिखते हैं, स्केलेटल मसल्स में भी, ठीक है। तो आपको ये ओवरव्यू के लिए हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि ये कार्डियक मसल्स में किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये स्केलेटल मसल्स में भी दिखता है, जैसे कि मसल फाइबर की बात करें तो यहाँ पे भी ये दिखता है, ठीक है। तो कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स आर दी स्ट्रेटेड in that they contain sarcomere and are packed into highly regular arrangements of bundles। देखिए आप bundles भी है, यहाँ पे बंडल हुआ है, ऐसा बंडल के तौर पे बना है। स्मूथ मसल्स हैज नीदर, स्मूथ नहीं होते हैं ये, ठीक है, ये स्मूथ नहीं होते हैं। तो स्मूथ मसल तो नहीं होगा भाई, जहां जहां स्मूथ है नहीं होगा। ओनली स्केलेटल भी नहीं होगा क्योंकि कार्डियक में होता है, ठीक है। तो आंसर विल डेफिनेटली स्केलेटल एंड कार्डियक, ठीक है। While skeletal muscles are arranged in regular parallel bundles, cardiac muscles connects at branching irregular angles, ठीक है। तो called as intercalated disc, इनको intercalated disc बोलते हैं, ठीक है। तो भाई ये याद रखना है कि आपका कौन सा पैरेलल बंडिंग होता है, कौन सा आपका ब्रांचिंग होता है, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रांचिंग वाले कार्डियक मसल एंड पैरेलल वाले स्केलेटल मसल्स के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इंटरक्लैटेड डिस्क क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन इज, ओके। So cobalt is an essential trace element for humans and is found at the center of the vitamin B12. So very easy, B12 में कोबाल्ट मिलता है, ठीक है, and a range of other coenzymes called cobalamins, ठीक है। Even though body contains only 2 to 5 gram of vitamin B12, its involvement in the production of red blood cell means is vital। तो भाई याद रखना है विटामिन यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक याद रखो, विटामिन के यूजेस 2, 4, 6 एंड 12 को याद रखना है कि इनके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोल दिया है कि B12 क्या है, रेड ब्लड सेल्स में आपको वाइटल है, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो आरबीसी के प्रोडक्शन में अगर बात करें तो B12 आपका हेल्पफुल होता है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। The next question is asking if a turgid plant cell is placed in a solution that has more solute, it exerts, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है। आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो टर्गिडिटी क्या होता है, एक स्टेट ऑफ स्वेलन होता है, ठीक है। स्टेट ऑफ स्वेलन जो होता है दैट इज टर्गिडिटी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल की बात करें, ठीक है, तो उसको हम जैसे ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे वहां से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की बात करें, ठीक है, जो कि फ्लैसिड है, उसमें क्या होगा कि पानी एक तरफ से बाहर निकाल रहा है और एक तरफ से एंट्री ले रहा है। तो भाई नेट मूवमेंट तो जीरो है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन टर्गिड क्या है, टर्गिड तो स्वेलिंग हो चुका है भाई, स्वेलिंग हो रहा है, ठीक है। तो स्वेलिंग हो रहा है और उसमें आपका वाटर क्या है, ऐड हो रहा है। क्यों, क्योंकि मोर सॉलिड वाले सॉल्यूशन में उसको प्लेस किया गया है जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो टर्गिड प्लांट्स आर मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड द ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ द वैक्यूल्स, ठीक है। When a plant which is turgid is placed in a hypotonic solution, it could cause the water to move into the cell by osmosis, exerting the high osmotic pressure। वाटर आ रहा है, ठीक है, वाटर आके आपके वैक्यूल्स और सेल वॉल्स में प्रेशर को इंक्रीज करेगा। यहाँ पे तो एक तरफ से जा रहा था, एक तरफ से आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि हाइपरटोनिक है। हाइपोटोनिक में यही होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपका वो टर्गिड प्लांट है, तो टर्गिड प्लांट ऑलरेडी स्वेल्ड है, उसको फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है।
तो आपको ये डेफिनेशन के साथ साथ इसका मीनिंग भी याद रखना है और ये फिगर भी याद रखना है। ठीक है, इसमें आप याद करो प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या होता है, फ्लासिड सेल क्या होता है और टर्गिड सेल क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा।